আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক উপজা দিন ছিকিম চৰকাৰৰ ব্যাপক জন্মদিনৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি মোদীৰ ৭৫ বছৰীয়া উপজা দিনৰ বিশাল কাৰ্যসূচী ৰাজধানী গ্যাংটকৰ ৰিচ পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান মা যোজনাৰ জৰিয়তে কেইবা হাজাৰ মহিলাক চেক প্ৰদান কেইবা হাজাৰ মহিলাক ৪০,০০০ দিব ছিকিম চৰকাৰে বিশেষ বিকলাংগ আঁচনিৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীক ২ লাখকৈ প্ৰদান ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ উদ্যোগত ৭৫ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন পঞ্চায়ত কৰ্মী সাফাই কৰ্মীলৈ চৰকাৰৰ প্ৰদান কৰিব বিশেষ পেকেজ নিৰ্বাচিত ৰিহেব চেণ্টাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আগবঢ়াব পুৰস্কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙৰ অধ্যক্ষতাত উদযাপন কৰা হৈছে মোদীৰ উপজা দিনটোৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এই মুহূৰ্তত ছিকিমৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দীপাংকৰ এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৭৫ সংখ্যক উপজা দিনটোত আৰু এই বৰ্ণাঢ্য বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আপোনাৰ জৰিয়তে সবিস্তাৰে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় জয়ন্ত আজি সমগ্ৰ দেশৰ চুকে কোণে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু অষ্টলক্ষ্মী বুলি যিদৰে কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আৰু তেনে মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত ছিকিমৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ছিকিমৰ ৰাজধানী গেংটকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি দেখুৱাইছোঁ য'ত ফুলেৰে এক প্ৰকাৰ সজাই বঢ়াই তোলা হৈছে ইয়াৰ যি স্থানীয় যি ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উদ্যোগত তেখেতৰ উপস্থিতিত এই বিশাল কাৰ্যসূচী আৰু বিশেষকৈ ছিকিম চৰকাৰে এইবাৰ কেইবাটাও আঁচনি আজিৰ দিনটোত মুকলি কৰিব কেইবা হাজাৰ মহিলাক চেক বিতৰণ কৰিব আৰু বিশেষকৈ বহু আঁচনি আমি যদি প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ আমা যোজনা অৰ্থাৎ মা আঁচনি নামৰ এটা আঁচনি নামাকৰণ কৰি যিসকল দৰিদ্ৰ মহিলা আছে বা বিধৱা মহিলা সেই ধৰণৰ মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰি প্ৰায় কেইবা হাজাৰ মহিলাক ৪০,০০০ টকাকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক দলটোৱে প্ৰায় ৭৫ গছি চাকি জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত ছিকিমৰ একমাত্ৰ যিগৰাকী লোকসভাৰ সাংসদ এই সাংসদগৰাকী মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে वेलकम टू सर फ्रॉम सर कैसा ये प्रोग्राम है पीएम का बर्थडे है स्पेशली आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो सिक्किम वासियों के ओर से हम सिक्किम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारत देश विकसित बनने जा रहा है और जिस तरह से लास्ट 11-12 इयर्स में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ है ये सब उनके नेतृत्व की वजह से हो रहा है और एनडीए गवर्नमेंट का हम एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी भी एक पार्ट है जिस तरह से हमें सिक्किम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा से इम्पोर्टेंस दिया है तो आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को हम जिस तरह के सेवा पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक होने वाला है इसको हम भव्य रूप से मना रहे हैं इसका ये स्टार्टिंग प्रोग्राम है जिसमें गवर्नर साहब खुद आएंगे मुख्यमंत्री महोदय भी रहेंगे और सारे मंत्रीगण आज रहेंगे आप लोग यहाँ का लोकल पार्टी यानी बहुमत आप लोगों को मिला और आचरित 32খন আসন বিধানসভাৰ আৰু 32খন আসনে এই আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৱে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু একমাত্ৰ যিগৰাকী সাংসদ তেওঁ তাৰ নেতৃত্ব দি আহিছে অৰ্থাৎ नेशनल एक पार्टी बीजेपी और आप लोग यहाँ का लोकल पार्टी ये जो डेवलपमेंट का जो इशू है उसमें कैसा सहारा मिला सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसको हम मेंटेन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम सेंटर में सपोर्ट करते हैं और हमको स्टेट गवर्नमेंट में हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया है और जो समन्वय बनना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये समन्वय बहुत अच्छे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बना है तो इसको ही मेंटेन करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं क्योंकि विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता और विदाउट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का रीजनल एस्पिरेशंस को हम आगे नहीं ले जा सकते इसलिए
हमें इतना विश्वास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आज तक रहा है आगे भी रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से ही हम स्टेट को पूरा डेवलप करेंगे। रीजनल पार्टी यहाँ पे रीजनल सेंटिमेंट्स जो है इसको भी पूरा मद्देनजर में रखते हुए सेंट्रल एस्पिरेशंस और जो रीजनल एस्पिरेशंस है इसको साथ में आगे ले जाने की हमारी उद्देश्य है। थैंक यू सर। और अष्टलक्ष्मी उत्तर पूर्वर और सिक्किम एकमात्र हिमालय पाददेशत थका एकमात्र राज्य और এই ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যখনত যিদৰে এটা উন্নয়নৰ গতি বৈছে তাৰ আৰতে কিন্তু এই ইয়াৰ স্থানীয় আঞ্চলিকতাবাদী দল আৰু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং আৰু তেওঁ কিছু সময়ৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হ'ব। মোৰ লগত সিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰা আছে আৰু লগত আছে মোৰ উন্নয়ন মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁৰ নেতৃত্বতে কিছু ইয়াৰ উন্নয়নৰ আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ছাৰ বধাই हो, आज मोदी जी के भी बर्थडे है और आप लोग मतलब पूरा चलाई जाएगी। बहुत बड़ा करके ये अनुष्ठान आप लोग ने आयोजन किया है सर, कैसा अनुभव? थैंक यू वेरी मच। आप सबको सिक्किम में स्वागत। सर्वप्रथम तो देश का प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है। मेरे तरफ से सारा सिक्किम के तरफ से सिक्किम का जनता के तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ और मंगल में शासन कर सकें। और हम यहाँ पर आज है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तिथि पे हम कार्यक्रम भी आयोजन किए हैं उसी के नाम पे। और ये जो जगह बनाया है ये भी एक्सक्लूसिवली इसी के लिए ही बनाया है। और एक साल भी नहीं है, सामने सिक्किम का इलेक्शन है और उसके सामने आप लोग ने ये जो आज जन्मदिन में ये जो बड़ा जो अनुष्ठान है आप लोगों का, बहुत सारा योजना आप लोग ने मतलब मुद्दा रखा है। तो किस किस की भित्ति से ये आप लोग का मुद्दा है आज में? नहीं, मेरा अपना आमा योजना कितना ये हमारा सरकार का योजना तो काफी है। कोई क्या बोले हम, एक आमा योजना है। आज यही आमा योजना का कारण से आज इतने लोग आज जमा हुआ है। इन लोगों को एक घर में एक माँ को पर ईयर 40,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, सरकार दे रहा है। इसके ऊपर में 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं। आज एक इंस्टॉलमेंट देखा और मार्च में एक इंस्टॉलमेंट देते हैं। ये इसलिए कि आमा को इसलिए दिया कि घर चलाना तो आमा को पड़ता है, तो घर का तकलीफ तो आमा को मालूम होता है। इसीलिए माँ के नाम पे ये आमा स्कीम हमने योजना तय की है, सरकार ने तय की। ये सिक्किम का मुख्यमंत्री का बड़ापन है। और हमारा डिपार्टमेंट का आज 17 प्रधानमंत्री का जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर वहाँ तक का जो पकौड़ा ये जो चल रहा है, इसमें हमारा आज से शुरू होता है साफ सफाई के अभियान में। और ये साफ सफाई के अभियान में हमारा जितने भी ये सफाई कर्मचारी है उन लोग हम सरकार के तरफ से 70 लोगों को हम आज अवार्ड दे रहे हैं। एसएसजी को अवार्ड दे रहे हैं। दीपांकर এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। একেদৰে মাতা বৈষ্ণোদেৱীৰ ভক্তই প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনালে ৭৫ সংখ্যক উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা। প্ৰয়াগৰাজৰ চেইলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে জন্মদিনৰ কেক কাটি উদযাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে
বিজেপিয়ে দেশজুৰি আজি পালন কৰিছে সেৱা পষেক। আজিৰে পৰা এই সেৱা পষেক আৰম্ভ হৈছে। সেৱা পষেকত কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দিল্লীত কৰ্তব্য পথত আয়োজিত ৰক্তদান শিবিৰত পুৱাই ৰক্তদান কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই। মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে অযোধ্যাত পুৱাই সম্পন্ন কৰিলে যজ্ঞ। দিল্লীৰ মন্ত্ৰী মনজিন্দৰ সিং শিৰসাই গুৰুদ্বাৰত সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা मोदीक। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जो परसों हमने अखंड पाठ साहब रखाए थे उनके भोग पड़े। अरदास की मोदी जी की चढ़ती कला के लिए वो इसी तरह देश की सेवा कर सकें। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। उन्होंने इस देश को तरक्की की लीहों पर लेकर आए हैं और जिस तरह की उनके भाव गुरु साहब के प्रति हैं, जिस तरह की उनकी भावना से गुरुओं के प्रति है, उनकी अथाह श्रद्धा प्यार और सत्कार है, उसी के चलते आज गुरुद्वारा बंगला साहब में भी उनकी सेहत की चढ़ती कला के लिए वो देश में इसी तरह मजबूती से देश को अगुवाई दे सकें, इसी तरह अच्छी सेहत के साथ देश को विकसित भारत बना सकें। इसके लिए और भारतवर्ष के लिए आज गुरुद्वारा बंगला साहब में ये अखंड पाठ साहब के बाद अरदास हम लोगों ने की है। हम कामना करते हैं मोदी जी इसी तरह देश को सेवा देते रहें और उनकी सेवाओं से जैसे पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम हुआ है, भारत और तरक्की की लीहों पे आएगा। प्रधानमंत्री मोदीर बाल्यकाলৰ বন্ধুৱে পুৰণি ফটো এলবাম দেখুৱাই শুৱৰিলে মোদীৰ সৈতে কটোৱা সময়সমূহৰ স্মৃতি। এয়া মোদীৰ বাল্যকালৰ বন্ধুৱে পুৰণি ফটো এলবাম দেখুৱাই মোদীৰ সৈতে কটোৱা সেই পুৰণি দিনৰ স্মৃতিসমূহ আজি উপজা দিনটোত এনেদৰে স্মৰণ কৰিলে। हम और नरेंद्र भाई बाल मंदिर से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े। स्कूलें बदलती हुई रही। पहले प्राथमिक शाला में थे दरबार में गुजराती, फिर BN स्कूल में 8 से 11 तक, फिर विष्णुनगर एमएन कॉलेज में पढ़े। हम साथ साथ थे और RSS में भी साथ साथ जाते थे, शाखा में भी जाते थे। और हमने मेरे घर पर नरेंद्र भाई और अपनी सभी टीम के साथ वो नाटक किया था कॉलेज में, पकड़खाना पाड़ियो। वो नाटक भी हमने साथ साथ किया था। 97 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब वो आए और उनका जीर्णोद्धार किया।